Hello students, today we will study Indian economy topic employment. Part 1. Topic employment part 1. Introduction. Work plays an important role in our lives as individuals and as members of society. Every person wants to work and earn a living to spend their life comfortably. Some work on farms, in factories, banks, shops, etc. Important points about work. Earn a living. People work to earn a living, get employed to lead a comfortable life. Independent. When anybody works, they started living an independent identity. They can live their life according to their terms. Contributing in national income. When anybody earns, they start contributing in national income in the form of paying taxes which can be utilized for the development of economy. Earn for family. People don't work for themselves alone, they work for the people who are dependent on them. Planning human resources. By studying number of working people, government get to know how to plan resources to provide large number of employment. Sixth, contribution in different sectors. Working people contribute differently in different sectors. Seventh, social issues. It helps in addressing many social issues such as exploitation of marginalized sections of the society, child labor, etc. Basic concepts. Worker, an individual who is involved in some economic activity to earn a living. Second, labor force, persons working plus persons seeking and or available for work. Third, labor force participation rate, labor force upon total population. Fourth, workforce, number of persons who are actually employed at a particular time. सो अब हम इन सारे 4 कॉन्सेप्ट्स को आगे की स्लाइड्स में समझेंगे. आगे की स्लाइड्स में इनको 1 बाय 1 रीड करेंगे. कौन कौन सी? वर्कर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्कफोर्स. ऑल दीज टर्म्स को हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. Worker, an individual who is involved in some economic activity to earn a living. They contribute to the flow of goods and services in an economy. A worker contributes to the process of gross domestic product, that is GDP. Examples: farmers, managers, doctors, etc. who all are included in workers. It is generally believed that people who are paid by an employer are workers. However, it is not true. First, self-employed, who earns a living by working for themselves, not as an employee of someone else and not as an owner of a corporation. It is becoming more and more common nowadays. They don't have a regular fixed stream of income. Second, people with temporary absence. Some people
leave the job temporarily due to some reasons like illness, bad weather, injury, etc. Third one is paid workers, people who work to earn an living. Okay students, these are the people who are included in workers. फर्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना खुद का बिजनेस या खुद का काम करते हैं. पीपल विथ टेम्प्रेरी एब्सेंसी, मतलब जो कभी कभी काम करते हैं, उनकी कोई इंजरी होती है, कोई इलनेस होती है, इस कारण वो काम बीच में अपना छोड़ देते हैं. थर्ड होते हैं पेड वर्कर्स, जिनको पैसा मिलता है काम करने के लिए और वो रेगुलरली काम करते रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया is multifaceted. Following points. First, full year employment. People will get employment throughout the year. Example, teachers, doctors, etc. Second one is not fair wages. Some workers don't get fair wages. If they have worked for 9 hours, they will get only a small amount of wages even if the working hours is so long. Third one is temporary workers. This type of workers get employment for a certain period of time. Example, farmers during harvesting or sowing season are in demand. Okay students, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? मल्टीफेसेड है. इसमें फर्स्ट क्या आता है? फुल ईयर एम्प्लॉयमेंट. फुल ईयर एम्प्लॉयमेंट मतलब जो पूरे साल लोगों को, जिन लोगों को काम मिलता है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं. ओके. सेकंड, नॉट फेयर वेजेस, मतलब बंदे ने कितना काम किया है उसके हिसाब से उसको वेजेस नहीं मिलती हैं. अगर उसने 9 घंटे काम किया है तो उसको सिर्फ 2-3 घंटे की वेजेस मिलती हैं या कम वेजेस मिलती हैं. थर्ड होते हैं टेम्प्रेरी वर्कर्स. ये मेनली एग्रीकल्चर में होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू सीज़न होते हैं कि ये सीज़न है तो वो लेबर को रखते हैं, अगर सीज़न नहीं है तो वो लेबर को निकाल देते हैं, तो वो इंक्लूड होते हैं टेम्प्रेरी वर्कर्स में. ओके स्टूडेंट्स, लेबर फोर्स. लेबर फोर्स इक्वल टू पर्सन्स वर्किंग प्लस पर्सन्स सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क. द लेबर पूल does not include the jobless who are not working or looking for work. Example, stay-at-home moms, retirees, and students are not part of the labor force. Discouraged workers who would like a job but have given up looking are not in the labor force either. To be considered part of the labor force, you must be available, willing to work, and have looked for a job recently. The size of the labor force depends not only on the number of adults but also how likely they feel they can get a job. Labor force कौन से होते हैं? जो पर्सन्स वर्किंग होते हैं, पर्सन सीकिंग होते हैं, इच्छुक होते हैं काम करने के लिए. इसमें हम स्टूडेंट्स को, स्टे एट होम मॉम्स को, या जिन्होंने रिटायर कर लिया होता है अपनी जॉब से, उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं. और इसमें डिस्करेज्ड वर्कर्स भी इंक्लूड नहीं होते हैं, जो हु वुड लाइक अ जॉब बट हैव गिवन अप, जो काम करना तो चाहते हैं पर उन्होंने अपनी जॉब को गिवन अप कर दिया होता है. और इसमें यू मस्ट हैव अवेलेबल टू, हमको लेबर फोर्स का पार्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? यू मस्ट बी अवेलेबल, हमें अवेलेबल होना चाहिए काम करने के लिए. विलिंग टू वर्क, विलिंग होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए. एंड हैव लुक्ड फॉर अ जॉब रिसेंटली, और अभी हमने काम को ढूंढने की कोशिश कर, तो वो सारे क्या होते हैं? वो लेबर फोर्स में आते हैं. द साइज ऑफ द लेबर फोर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द नंबर ऑफ अडल्ट्स बट आल्सो हाउ लाइकली दे फील they can get a job. Okay students, now how to calculate labor force. अब हमने पढ़ लिया लेबर फोर्स क्या होती है, अब हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन. जो चीज़ें नीचे दी गई हैं 3 थिंग्स, उनको हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है लेबर टोटल पॉपुलेशन से, लेबर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए. फर्स्ट वन इज़ अनफिट पीपल
like old or handicapped persons. अनफिट, जो काम नहीं कर सकते हैं, जो फिट नहीं होती है, ठीक नहीं होती है जिनकी सेहत, और वो ओल्ड होते हैं, जैसे ओल्ड हो गया, कोई हैंडीकैप पर्सनस हो गए. पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, और उन पर्सनस को भी कैलकुलेट नहीं करना चाहिए जो विलिंग नहीं होते हैं वर्क करने के लिए, जिनकी इच्छा नहीं होती काम करने की. थर्ड, पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, उन लोगों को भी नहीं जो अवेलेबल ही नहीं होते काम करने के लिए. तो इन तीन चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, लेबर फोर्स कैलकुलेट करते समय सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. फर्स्ट इज अनफिट पीपल लाइक ओल्ड और हैंडीकैप्ड पर्सनस. सेकेंड, पीपल हु आर willing, who are not willing to work, who are not willing to work. Third one is people who are not available for work. तो इन तीनों चीज़ों को हम माइनस करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेबर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन. रेशो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेबर फोर्स और टोटल पॉपुलेशन की रेशो से. ओके, इट मेजर्स टू इवैल्यूएट वर्किंग एज पॉपुलेशन इन एन इकोनॉमी. ये मेज़र हमको हेल्प करता है इवैल्यूएट करने में, पता लगाने में कि वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी कितनी है, काम करने वाली जो एज है वो हमारी इकोनॉमी में कितनी पॉपुलेशन है. द पार्टिसिपेशन रेट refers to the total number of people or individuals who are currently employed or in search of a job. ये हमको मेज़र हेल्प करता है बताने में कि टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स कितने हैं जो इस समय एम्प्लॉयड हैं, काम पर लगे हुए हैं, और इन सर्च ऑफ जॉब है, और जो जॉब ढूंढ रहे हैं. ओके, this is an important metric when the economy is not growing or is in the phase of recession. ये हमको हेल्प तब करता है जब हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही होती है, हमारी इकोनॉमी रुकी होती है, या रिसेशन या नीचे का पीरियड आ रहा होता है. इट इज़ दैट टाइम when people look at the unemployment data. ये वो टाइम है जब हम अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की ओर देखते हैं इसकी हेल्प से, क्योंकि इसमें हम इवैल्यूएट कर लेते हैं ना वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, तो जो बाकी बची वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट डाटा हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन. रेशियो निकालनी है लेबर फोर्स की और टोटल पॉपुलेशन की. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्क फोर्स. द नंबर ऑफ पर्सन्स who are actually employed at a particular time. नंबर ऑफ पर्सनस जो एम्प्लॉयड होते हैं, एक्चुअली लगे होते हैं काम पर, एम्प्लॉयड होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम की, तो उसमें हम बोलते हैं उनको वर्क फोर्स. और अगर अनएम्प्लॉयड पीपल निकालना हो तो वो निकलता है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स से. ओके, द पीपल एंगेज्ड इन और अवेलेबल फॉर वर्क either in a country or area or in a particular firm or industry. जो particular firm, industry, area या इन firm में काम कर रहे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, workforce. It can also be applied to a geographical region like a city, state or country. ये हमें जोग्राफिकल एरिया में भी अप्लाई करता है, जैसे एक सिटी में कितने एम्प्लॉयड हैं, एक्चुअली वर्किंग है स्टेट में और कंट्री में, तो हम इन सारों को मिला के क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट. वर्कर पॉपुलेशन रेशो. वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100. टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमारी इंडिया में कितने हैं उनको हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. इट इंडिकेट्स और एनालिस द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री. इस रेशो से हमको क्या पता लगता है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, कि हमारे कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड है, वो सिचुएशन हमको पता लगती है. दिस रेशो इज़ यूजफुल इन नोइंग द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग to the production of goods and services
ऑफ अ कंट्री। इस रेशो से हमको ये भी पता लगता है कि हमारी कितनी % पॉपुलेशन एक्टिवली इन्वॉल्व है काम करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री में। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, काम करने वाले कितने हैं इंडिया में, और इन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन और मल्टीप्लाइड कर देते हैं हंड्रेड्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट important points about worker population ratio. First, determination of proportion of population, useful in telling how many people are actively contributing to the production of goods and services of a country. ये हमको यूज़फुल होती है बताने के लिए कि हमारे कितने पीपल एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प कर रहे हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं। सेकंड, स्टेटस ऑफ वर्कर्स, मोर एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री हाई स्टेटस, लो एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री लो स्टेटस। अगर पीपल काम कर रहे हैं, अगर लोग काम कर रहे हैं तो उनका क्या होगा, स्टेटस ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो हाई स्टेटस कब होगा, जब लोग मोर एम्प्लॉयड होंगे। ओके, और लो स्टेटस हमारा कब होगा, जब लो एम्प्लॉयमेंट, अभी जब लोगों के पास कम काम होगा तो उनका क्या होगा, लो स्टेटस होगा, लो लिविंग और स्टैंडर्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इज रेशो इंडिकेशन, हाई रेशो एंड लो रेशो। हाई रेशो होगी, इसका मतलब होगा एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज़ ग्रेटर, लोग काम में ज़्यादा लगे हुए हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा इंगेज हैं। और अगर हमारी रेशो लो या मीडियम होगी तो इट इम्प्लाइज दैट अ वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर हमारी रेशो लो या मीडियम होती है तो इससे ये पता लगता है कि बहुत सारी % ऑफ पॉपुलेशन हमारी क्या है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं है, यानी कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ इज जॉब सेटिस्फैक्शन, helps us to know the job satisfaction level of people, if people are satisfied with their job or not. Employment, an activity which enables a person to earn means of living. Employment for people varies in the sense that some of them are employed for the whole year while others are employed only for some time during a year. Employment for people varies कैसे करती है कि कई लोग ऐसे होते हैं वो होल ईयर के लिए एम्प्लॉयड होते हैं, और कई पीपल ऐसे होते हैं जो सम ईयर के लिए एम्प्लॉयड होते हैं, जो थोड़े टाइम के लिए एम्प्लॉयड होते हैं, थोड़े टाइम के लिए काम होता है। थोड़े टाइम के लिए काम मेनली कहाँ पे आता है, एग्रीकल्चर में आता है। ओके स्टूडेंट्स, self-employed, an arrangement in which worker uses his own resources to make a living. They don't work for a specific employer who pays them a consistent salary or wage. They earn their income directly from their own business. जो अपना खुद का बिज़नेस करते हैं, खुद का काम करते हैं, किसी एम्प्लॉयर से उनको सैलरी नहीं मिलती, उनका खुद का बिज़नेस होता है, ओन बिज़नेस होता है। वो कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल्स हैं शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एट्सेट्रा। एग्जांपल्स शॉपकीपर्स, traders, businessman, etc. Wage employment, an arrangement in which a worker sells his labor and earns wages in return. He is being paid by his employer the remuneration for his work. वो एम्प्लॉयर के लिए काम करता है तो उसको उसके बदले क्या मिलती है? वेजेस मिलती हैं. He works as per the terms and conditions laid down by the employer. उसको टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको चीज़ें सारी माननी पड़ती हैं. किसकी? एम्प्लॉयर की माननी पड़ती है. एग्जाम्पल, डॉक्टर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल. अगर कोई डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है तो वो क्या है?
वेज एम्प्लॉयमेंट है। अगर वो अपने ओन क्लिनिक में वर्क कर रहा है तो वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करे तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट है। अगर वो अपने ओन क्लिनिक में काम कर रहा है तो वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है रेगुलर वर्कर्स, सेकंड है कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स engaged by someone and is being paid wages on regular basis. They get all the social benefits like pension, PF, provident fund, etc. They don't have the fear of being fired. एग्जाम्पल कौन से होते हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स एट्सेट्रा। जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं, जिनको रेगुलरली बीइंग पेड होते हैं, वो कौन, उनको सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, सारे पेंशन मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, LTC मिलता है, सारी इनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और ये दे डोंट हैव द फियर ऑफ बीइंग फायर्ड, उनको कोई डर नहीं होता कि उनको कोई नौकरी से निकालेगा। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, टीचर्स एंड प्रोफेसर्स। कैजुअल वर्कर्स, who is casually engaged and gets remuneration for work done. They don't have the commitment in advance. They may include daily wage workers. They don't get any social benefits. They don't have fixed working hours. इनके fixed working hours भी नहीं होते हैं। They can't be fired anytime. इनको कभी भी फायर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कैजुअल वर्कर्स है, डेली वेजेस है। ओके, एग्जाम्पल हैं डेली वेज वर्कर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क। जो सेल्फ एम्प्लॉयड या रेगुलर सैलरी वाले होते हैं वो कैजुअल वेज वर्क की ओर चल पड़ते हैं। अ सिचुएशन when the percentage of casually hired workers in the total workforce tend to rise over time. Now, last topic is reasons for increasing casualization. First, lack of opportunities. Due to lack of jobs in organized sector or in agricultural sector, people start working as a casual worker. Second, working hours. Due to fixed working hours, people start shifting from regular workers to casual workers. Third, increasing number of industries. When number of industries is getting increased, people start shifting because there occurs large employment. Fourth one is increase in demand for casual labor in expanding construction, trade and service activities in rural areas also led to shift to become casual workers.